خوش آمدید خضر رئیس. جزائر میں، بحیرہ روم میں، ہسپانیہ سے، وینیدک والوں سے اور ان کے جنگجوؤں سے آپ کی جیت کے قصے سن کے پروان چڑھا ہوں میں. آخر آپ سے ملنا نصیب ہو ہی گیا. سمندروں کا فاتح ہے میرے سامنے. ترک خاندان عالیہ کی آنکھوں کے نور شہزادے، میں آپ کی اس تعریف کے بالکل لائق نہیں. ہماری تمام سپاہ اور عوام کے دلوں پر آپ کی حکمرانی ہے. میں جہاں بھی جاتا ہوں سب آپ ہی کی باتیں کرتے ہیں، آپ کا ہی پوچھتے ہیں، سلام و احترام بھیجتے ہیں آپ کے لیے. حاکمیت ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے. ان کے پیار کے لائق بننے کے لیے جو ہو سکے گا کروں گا میں. تیاریاں کہاں تک پہنچی؟ ٹیونس فتح کرنے کے لیے 90 جہاز تیار کروا رہے ہیں، میں نے سنا ہے. کیا یہ کافی ہوں گے؟ اللہ کی مدد کے ساتھ دشمنوں کو شکست دینے کے لیے کافی ہیں شہزادے. تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں. انشاءاللہ 1-2 روز میں سمندر میں اتار دیے جائیں گے. اعلیٰ. جیسے کہ میرا خیال ہے خزینہ سلطان نے ابراہیم پاشا کو معاف کر دیا ہے. سفر سے لوٹنے کے بعد وہ پھر سے اپنے محل واپس چلے جائیں گے اور سب بھلا کر اپنی زندگی دوبارہ شروع کریں گے. مجھے افسوس ہے کہ یہ سب جھیلنا پڑا تمہیں اور تمہاری اولاد کو. آپ کیا چاہتی ہیں مجھ سے ملکہ؟ یہاں کیوں لایا گیا ہے مجھے؟ خزینہ سلطان کے لیے لائی ہیں کیا؟ تاکہ ان کی نظروں کے سامنے رہوں میں؟ یہی سچ ہے. میں کیا کرتی؟ میرا سکون برباد کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. ان لوگوں کا مقابلہ ہمیں مل کر کرنا پڑے گا. مجھے خزینہ سلطان کے مقابلے آنے والی کیا آپ نہیں تھی ملکہ؟ نکار میں اس پر مجبور تھی. ابراہیم پاشا اور میری دشمنی کے متعلق تم جانتی ہو، لیکن جیسا کہ تم نے دیکھا تمہیں موت کے حوالے نہیں کرنے دیا نکار. کاش کے پہلے ہی تمہیں وہاں سے فرار کروا سکتی، لیکن نہیں کروا سکی. خیر اب تم زندہ ہو اور یہی بات اہم ہے. میرا بھروسہ کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. معافی چاہتی ہوں ملکہ، مجھے اب کسی پر بھی بھروسہ نہیں رہا. میری رئیس نے اپنے نقشوں میں نئی دنیا کی جو تصویر بنائی ہے اس کے مطابق کیا ہمیں عمان سے گزر کر نئی دنیا کی طرف جانا چاہیے؟ ضرور شہزادے. کفار نے یہ دیکھ کر کہ ہم اس طرف حکومت نہیں کر سکتے، بڑے سمندر کے راستے نئی دنیا کے رئیسوں کو لوٹنا شروع کر دیا ہے. تو پھر ہم نے کیوں وہ سرزمین اسپین کے کافروں کے لیے چھوڑ دی ہے؟ اگر ہم جہاں کے حکمران ہیں تو ساتوں بر اعظموں پر دنیا کے چاروں طرف ہمارے نام کا جھنڈا لہرانا چاہیے. میرا بھی یہی خیال ہے شہزادے. مشرق کے سفر سے واپسی کے بعد اس بارے میں آقا سے بات کروں گا، لیکن اس دور سلطنت میں بحیرہ روم میں ہمارا ہی جھنڈا سربلند ہے. وینیدک اور ہسپانیہ پر ہم قابض ہیں، بس یہی کافی ہے. کچھ یہ بھی کہتے ہیں. تنگ نظر انسان ہمیشہ ایسے ہی سوچتے رہیں گے بادشاہ. ہمارے عظیم بزرگ سلطان محمد خان محترم اگر یہی سوچتے تو آج یہ استنبول ہمارا نہیں ہوا ہوتا. ہم انہی کی اولاد میں سے ہیں. اپنے بزرگوں کے لائق بننا ہے ہمیں. آقا سے احوال گوش گزار کروں گا. ابراہیم پاشا بھی یہی چاہتے ہیں، میں جانتا ہوں. شہزادے علی قدر، اگر اجازت ہو تو تیاریوں کو ایک نظر میں بذات خود دیکھنا چاہوں گا. بالکل اجازت ہے آپ کو خضر رئیس. آپ پر اور آپ کے جانثاروں پر پورا بھروسہ ہے. آپ کا راستہ آسان اور آپ کی تلوار کاٹدار ہو. عفیفہ خاتون، مجھے حورم سلطان سے ملنا ہے. آپ انتظار کریں، آپ کے آنے کی خبر کرتی ہوں ملکہ کو. تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا یہی محسوس کرتا. کچھ وقت گزرنے دو، یقیناً صدمہ کم ہو جائے گا. میرا نہیں خیال ملکہ، ایسا صدمہ ہے کہ نکال. تم
तुम्हें इंतकाम लेना होगा। मलिका, अफीफा खातून आई हैं, आगा भी उनके साथ हैं। वो जरूर निगार के लिए आए हैं। तुम अंदर जाओ। बुलाओ उन्हें। मलिका, अगर निगाह को लेने आए हैं तो इसकी जहमत बिल्कुल ना करें। हसीना सुल्तान का हुक्म है, उन्होंने हर सूरत में निगार को साथ लाने का कहा है। अफीफा खातून जरा अपने इतराफ में नजर दौड़ाएं। निगाह नजर आ रही है क्या आपको? मलिका, आप मेरे फर्ज के रास्ते में रुकावट बन रही हैं। उस खातून को आप हमारे हवाले कर दें, वरना हम मजबूर हो जाएंगे जबरदस्ती करने पर। मतलब कि निगार का अल्फा। वालिदा, आपने मुझसे सब कुछ क्यों छुपाया? मैं चाहती थी इसलिए छुपाया मैंने। ऐसे हादसों में उलझा कर तुम्हें मैं परेशान नहीं करना चाहती थी। कहाँ है निगार का अल्फा? अब अफीफा खातून को भेजा है शहजादे, वो मसला संभाल लेंगी। शहजादे मोहतरम, हुरम सुल्तान तशरीफ लाई हैं। अंदर भेज दें। उसे क्यों बुला रहे हो मुस्तफा? वापस भेज दो। वालिदा पुरसकून रहे। ये मसला सुलह से हल करने की जरूरत है हमें। शहजादे, शहजादे, सूरत हाल बेहतर होने तक तुम्हें यहीं रहना होगा। हुरम सुल्तान के सच्चे खादिम बन गए हो आगा। वो 4 शहजादों की माँ है, उनकी खिदमत नहीं करो तो भला किसकी खिदमत करूं? ऐसे बात नहीं करो जैसे तुम कुछ जानती ही नहीं हो। दाया खातून भी नहीं रही, गुलागा भी हमेशा के लिए चला गया और तुम्हारी सूरत हाल सामने है। मजबूर होकर मैं कर रहा हूँ सब कुछ। और तुम क्यों आ गई दोबारा यहाँ? निगार अपनी जान बचा ली है तो कहीं चली जाओ। क्या काफी नहीं है इतना दुख झेलना? कसम से जब मैं सोचता हूँ तो परेशान हो जाता हूँ। अब किस्मत में जो लिखा है वो तो होगा। मेरी बात सुनो, अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कहीं दूर भिजवा देता हूँ तुम्हें, जहाँ कोई ढूंढना भी चाहे तो ना ढूंढ सके। तुम जवान हो, खूबसूरत हो, कोई तलबगार मिल जाएगा जरूर। शादी कर लेना, बच्चों को पालना अपने। अब मेरी कोई ख्वाहिश नहीं रही आगा, कोई मुस्तकबिल नहीं। निगार का यहाँ रहना मुमकिन नहीं है मलिका, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। मैं आपको नहीं रोकूंगी शहजादे, आप जब कहेंगे आपके हवाले कर दूंगी वो खातून। लेकिन निगार की क्या खता है मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे। अफीफा खातून से भी सवाल किया लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। हम तुम्हें वजाहत देने पर मजबूर नहीं हैं हुरम। जब किसी के पास जवाब नहीं तो मैं बताती हूँ आप सबको। निगार की ये एक संगीन जुर्म है, छोड़ दे निगार को, काजी खुद इसका फैसला कर लेगा। अदालत में जाने दे, कानून जो कहता है उसी पर अमल दरामद किया जाए। मगर इस सूरत हाल में इब्राहिम पाशा को भी अदालत में जाना होगा। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? कैसा काजी? किस जुर्म की बात कर रही हो तुम? मैंने कोई शिकायत की है क्या? शहजादे, शहजादी सच कहती हैं, जिसका आपको हक नहीं, इस मसले में मत उलझें। तो फिर ये एक सियासी फैसला है। को छुपाना चाहते हैं आप। बेहतर है इस मसले में ना ही उलझो तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। मैं फिर भी शेखुल इस्लाम साहब से फतवा लूंगी, वो अपने तजुर्बे से हमारी दुरुस्त रहनुमाई करेंगे। तुम ये नहीं कर सकती। मैं तो ऐसा करूंगी, पाशा की निगार के साथ किसी से छुपी नहीं रहेगी।
क्या तुम हमें धमकी दे रही हो? मैं समझौते को तरजीह दूंगी, लेकिन शहजादी फैसला आप ही का होगा। ये पूरा इस्तांबुल जान लेगा, या फिर आका की आमद का इंतजार करेंगे। शहजादे, संभल कर काम करो गुलशाह, तुम्हारे मुतालिक बहुत सी बातें सुन रही हूँ। वाकई में? क्या सुना आपने? फिर से क्या कर दिया मैंने? जो तुम कर रही हो मुझे इसकी खबर नहीं, क्या तुम ये समझती हो? कनीजों को धमका धमका कर उन पर हुक्म चलाती हो। सब की सब हिरासा हो गई है तुमसे। ऐसी बातों पर आप कान न धरें। कुछ अदब से रहो खातून, वरना तुम्हें अपनी जिंदगी पर अफसोस होगा। मुझसे मत उलझे, मैं हुरम सुल्तान की खास कनीज हूँ, मुझे छूने वाला जल जाएगा। गुलशाह, मलिका, फौरन मासरत करो अफीफा खातून से। मलिका, मासरत चाहती हूँ अफीफा खातून। अगर तुमने दोबारा कोई गुस्ताखी की तो तुम्हें जान से मार दूंगी, समझ गई? हाँ। शहजादी, आप किस बात का इंतजार कर रही हैं? आप इसकी बातों को बिल्कुल संजीदा न लें। निगार को सजा मिलनी चाहिए। तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? वो सबको बता देगी। हुरम की धमकियों के आगे क्या सर झुका देंगे? वालिदा, पुरसुकून रहें, जज्बात से काम न लें। ये मसला खानदान और खजीना सुल्तान के वकार का है। निगार के मसले का किसी को मालूम ना हो, क्योंकि इसका नतीजा बहुत संगीन हो सकता है, खासतौर पे इब्राहिम पाशा के लिए। क्या होगा फिर? हम क्या करेंगे? जो उसूल कहते हैं वो अफीफा खातून। निगार मेरी खिदमत में है, उसे बेसबब यहाँ से नहीं निकाल सकते। अगर आप चाहें तो कोई ना कोई सबब ढूंढा जा सकता है मलिका। निगार अब मेरी सरपरस्ती में रहेगी यहाँ। नादिया से ज्यादा उसकी हिफाजत करूंगी, यकीन दिलाती हूँ। हुरम, शहजादी, निगार के अंजाम का फैसला आका के आने के बाद ही होगा। उस वक्त तक मैं उसे यहाँ रहने की इजाजत दे रही हूँ। आपने दुरुस्त फैसला किया है शहजादी। और आका की आमद के बाद निगार के साथ तुम्हें भी जाना होगा इस महल से। खानदान को धमकाने का मतलब क्या होता है तुम जान जाओगी। रफीफा खातून, फरमाइए शहजादी। निगार को मैं देखना नहीं चाहती, कत्तन मेरी नजरों के सामने नहीं आएगी वो। हजर रईस, वजाहत दो साल रईस। ग्योलिया गोंजागा कहाँ है? गिरफ्तार हो गई क्या? वो फोंदी किले में नहीं रहती है, ये साबित हो गया है रईस। हमारे बहादुरों ने हमला किया, लेकिन अफसोस के आखिरी वक्त में हाथों से निकल गई। इब्राहिम पाशा ने उस औरत को लाजमन ढूंढने का हुक्म दिया है। फौरन किसी को रवाना करो और भेस बदल कर भेजना उसको। उसका पता मिलते ही वो फौरन हमें खबर करे। वो रोम की तरफ ही गई होगी। मेरा नहीं ख्याल खजर रईस, पोप ने रोम खाली करने का हुक्म दे दिया है। वो समझ रहे हैं कि हम इनके लिए आए हैं। गोंजागा मंटोवा की तरफ जाएगी। रोमा की बारी बाद में आएगी। पहले हम ट्यूनिस फतह करेंगे।
गोंजागा का पीछा करो, रुख तब्दील किया जाए। ट्यूनिस जा रहे हैं हम। नफस ज़रा बख्तर है इब्राहिम, एक लिबास है, पोशाक है। इससे पहले कि ये तुम्हें ढांप दे, तुम इसे पहन लो। तुम जहां से आए हो, जहां जाओगे, जहां हो और जहां होना है तुम्हें, वो सबसे ऊंचा मुकाम है। इससे भी ज्यादा बुलंद मुकाम पर होना चाहिए, लेकिन तुम्हें पस्ती में धकेला जाएगा। इस बाइस सबको एक तरफ छोड़ दो, अपने मुकम्मल हाकिम बनकर कदम कदम पर सामने आने वाले अपने अंजाम के मुतालिक गौर करो। ये पर्दा चाक कर दो, साया हटा दो, अपने ज़हन और चश्म की तमाम तवज्जो सिर्फ और सिर्फ करीबी हकीकत पर सर्फ कर दो। किसी भी तौर अपनी तवज्जो ना हटने दो। ये कायनात, ये दुनिया, ये समंदर कुछ भी नहीं। तुम यहीं ठहरो फिरोजा। मलिका, परचम आगा, क्या हुआ? आपको बेआराम कर रहा हूँ, लेकिन आपको एक अहम वाक़े की खबर देना चाहता था। कहो। रुस्तम आगा ने मकतूब भेजा है। उनके मुताबिक इब्राहिम पाशा अपने लिए सुल्तान का खिताब इस्तेमाल करने लगे हैं। सुल्तान इब्राहिम? वो सख्त नाफरमानी कर रहे हैं। अपने लिबास की जगह आका की ज़रा पहन रहे हैं। आका इस बात पर बहुत बरहम हुए, इतने ज्यादा कि खबर लाने वाले कासिद का सर कलम करवा दिया। इब्राहिम पाशा का सबसे बड़ा दुश्मन तुम जानते हो कौन है? वो खुद ही है। मेरे आका, आपको यहां देखकर मुझे खुशी हुई। खुश आमदीद। बताओ ये आंखें किसकी हैं? ये कांपती आवाज किसकी है? इतना बेचैन कौन है इस ज़रा के अंदर? जो भी है उसे बता दो, मेरा लिबास पहनकर वो सुल्तान नहीं बन सकता। कोई परेशानी, किसी चीज की कमी तो नहीं है ना? नहीं मलिका, आपके साय में किसी चीज की कमी नहीं मुझे। खूब।
सुंबुल से कह दिया है तुम्हारे लिए सबसे खूबसूरत कपड़े दिखाएगा। दर्जी के पास ले जाना, अपने लिए लिबास सिलवा लेना। दर्जी की जरूरत नहीं मलिका, मैं खुद सी लूंगी। कितना हुनर है तुम्हारे हाथों में। वक्त आने पर तुम्हारी रोशन मुस्तकबिल के लिए तुम्हारी शादी करवा दूंगी। तुम जैसी खूबसूरत, समझदार, हुनरमंद खातून को हरम में यूं जाया नहीं करना चाहती मैं। क्या कर रही हो? हवाखोरी कर रही हूँ फिरोजा के साथ यहाँ। कनीजों से दोस्ती कर ली है क्या तुमने? हैरत है, मुझे किसी किस्म का गुरूर नहीं। तुम्हें क्या हो रहा है मैं समझ नहीं सकी। एक शहजादे के सबब तुम सबसे बुलंद हो, क्या ये समझती हो? लेकिन अब तक तुम एक गुलाम ही हो। अपने बेटे को भी हिरस का गुलाम बना दिया तुमने। सब कुछ बदल जाएगा हुरम। मेरे बेटे की तख्त नशीनी के साथ मैं वालिदा सुल्तान बन जाऊंगी। उस दिन ना ये गुलामी रहेगी, ना ही तुम्हारा वजूद। सब कुछ खत्म कर दूंगी। तमाम दिन ख्वाबगाह में मुस्तफा के साथ रहती हो, मतलब कि दोनों यही बातें करते रहते हो। आका को इस बारे में इल्म होगा तो बहुत दुखी होंगे, वो जानती हो ना। हम ऐसी कोई बात नहीं करते। आज या कल ये होकर रहेगा, बता रही हूँ मैं। मालूम है आका इस वक्त सफर में है और मेरी दुआ है कि अल्लाह बुरा वक्त ना दिखाए। लेकिन ये जंग है, कुछ भी दुआ है कि अल्लाह बुरा वक्त ना दिखाए। लेकिन ये जंग है, कुछ भी हो सकता है। जरा सोचो, अगर आका वापस लौट कर ना आ सके तो? मेरे आका के जिलजा वाले हमारे लिए घात लगाए बैठे थे। इसी घात के सबब तहमास को हौसला मिला के उसने भरपूर तरीके से हम पर हमला करने की कोशिश की। गिलान खान मुजफ्फर 10,000 सिप्पा की हमरा हमारी मदद को आए तो तहमास हमदान की जानिब पसपाई पर मजबूर हो गया और इस तरह तबरेज और उसके अतराफ के इलाके फिर से हमारी हाकमियत में आ गए। पहुंचता तो फिर क्या होता पाशा? मुझे तुम इसका क्या जवाब देते? तुमने शुरू में ही गलती कर दी पाशा, ठीक रास्ता छोड़ दिया। तुम्हें तबरेज में नहीं, जैसा कि फैसला हुआ था, बगदाद में इंतजार करने की जरूरत थी। सफर की तैयारियां बगदाद के हिसाब से थी। माफी चाहता हूं आका, लेकिन ये सबसे मुनासिब और फतह से हमकिनार करने वाला मुख्तसर तरीन रास्ता है। अल्लाह की मदद से हमें फतह मिल गई। ये जगह तहमास का दिल है मेरे आका। बगदाद को हम किसी और वक्त भी फतह कर सकते हैं। इसी वजह से तुम्हें माफ कर रहा हूं। शुक्र करो कि तबरेज फतह हो गया। मुस्तफा पाशा, तहमास कहां है? वो कहां छुपा हुआ है? वजाहत करो। ये सब तुम्हारी गलती है साद मिर्जा। वक्त पर हमला किया होता तो ऐसा कभी ना होता। उसको रोकना मुमकिन नहीं था शाह, और ये तो आप भी जानते हैं। कुछ दिन ही रोक लेते तो काफी होता। सुलेमान के आने से पहले ही इब्राहिम को खत्म कर सकते थे। अब ये सब सोचने का वक्त नहीं है। सुलेमान तबरेज पहुंच गया है। क्या फैसला किया आपने? अब हम क्या करेंगे? इंतजार करेंगे। वो यहाँ हमेशा तो नहीं रह सकते, लाजमन वापस जाएंगे। उनके जाते ही हम तबरेज पर दोबारा काबिज हो जाएंगे। ये दुरुस्त है, लेकिन वो हम पर हमला कर सकते हैं। फौरन से पहले हमें एलची भेजना चाहिए, सुलह का रास्ता ढूंढना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम सरमा करीब है आका, तबरेज में ज्यादा वक्त नहीं ठहर सकते। तुम्हारा क्या मशवरा है? हमें फौरन बगदाद का रुख करना चाहिए। लश्कर वहीं मौसम सरमा गुजारे, मौसम बहार के आते ही तैयारी करके तबरेज लौट आएंगे हम। आका मौसम सरमा यहीं गुजारते हैं, और वैसे भी बगदाद के रास्ते दुश्वार हैं। सिपाही थकावट से चूर हैं और जख्मी भी हैं। इसके अलावा लश्कर के साजो सामान की मुंतकली में भी दुश्वारी होगी। अगर हम इस मौसम में रवाना हुए तो हमें भारी नुकसान भी हो सकता है। लश्कर आराम से नहीं बैठेगा आका। बगदाद को फतह करने के बाद वहां के माली गनीमत से सभी को खुशी होगी। इसके अलावा मैं हर तरह एहतियात से काम लूंगा। तो फिर तैयारी शुरू करो सिकंदर चलेबी, हम बगदाद जा रहे हैं। मेरे आका, मैं फैसला हो चुका है। हमारे रवाना होते तहमास दोबारा तबरेज पर कब्जा करने की कोशिश करेगा मेरे आका। हम यहाँ मुस्तकिल कयाम नहीं कर सकते। इसके सद्दे बात के लिए क्या करना चाहिए? नई सल्तनत बना लें क्या?
लगता है आपको मेरे मंसूबों की खबर नहीं दी गई। इजाजत दें ताकि मैं वजाहत कर सकूं। कोई वजाहत नहीं चाहिए पाशा। सल्तनत के अंदर सल्तनत नहीं बना सकते, खास तौर पर दियार आजम में। फर्ज करो सल्तनत कायम भी हो गई, उसकी सरबराही कौन करेगा? क्या तुम? हरगिज नहीं, मेरी जगह तो आपके पास है। तुम्हें ही नहीं अपनी औलाद को भी तख्नशीन कर दूं तो नतीजा नहीं बदल सकता, एक दिन दुश्मन बन जाएगा। इजलास खत्म हुआ, आप सब जा सकते हैं। मेरे आका। तुम भी जाओ पाशा। सिकंदर चले भी तुम ठहरो। रुस्तम आगा, यहाँ। पाशा मोहतरम। कैसे आना हुआ तुम्हारा? अहमद आगा कहाँ है? उनकी वफात हो गई, उनकी जगह आका ने मुझे तैनात कर दिया। कैसे वफात हो गई? घोड़े से गिर गए थे। जब उनके पास पहुंचे तो वो बेजान पड़े थे। कोई है क्या? मदद करो मेरी। अहमद आगा। हाँ रुस्तम। खैर तो है, क्या हुआ आगा? किसी ने इसकी सीन ढीली कर दी। ऐसा कौन कर सकता है आगा? मैं पता लगा लूंगा वो कौन है। मुझे उठाओ। ऐसा क्या देख रहे हो? देखते नहीं मुझे कितनी तकलीफ हो रही है? हाँ, फिक्र ना करो, सारी तकलीफ खत्म कर दूंगा। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। रुस्तम आगा, तुम्हारा काम बहुत अहम है। मुझे यकीन है तुम्हें इस बात का एहसास है। आप फिक्र न करें पाशा मोहतरम, बरसों से खुद को इस काम के लिए तैयार करता रहा हूं, खुद को लायक साबित करूंगा। देखते हैं। देखते हैं। बताया अफसोस के साथ सब सच है। आका, ये पाशा का हुक्मनामा है। सालार आजम सुल्तान इब्राहिम लिखवाया गया है और इस पर अपनी नहीं मोहरे हुमायूं सब्त है। जरूर कोई मसलहत होगी। सवाल किया था आका, सिपाही भी बहुत परेशान थे। शाह के मुकाबिल शाह होना चाहिए, इस पर एहतजाज भी किया। पाशा ने उन लोगों को खामोश करने के लिए ये लक़ब इस्तेमाल किया। कोई और बात है क्या? सफर के दौरान काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा आका। पाशा ने मेरी एक बात ना सुनी, अपने मंसूबों के मुतालिक कुछ नहीं बताया और चंद रोज पहले मेरे सबसे काबिल 30 सिपाहियों को फांसी दे डाली। उनका कहना था कि खजाने को ऊंटों पर लाद कर ले जा रहे थे, लेकिन मुझे यकीन नहीं है, ये किसी की साजिश है। अपनी हद ना भूलो सिकंदर चलेबी। तुम जिसकी शिकायत कर रहे हो वो मेरा मुतलक अमीन है। इसके अलावा अगर इब्राहिम पाशा की कोई गलती है भी तो नायब होने की हैसियत से तुम्हारा भी कसूर है। तुम कैसे अपने आप को अलग समझते हो? आका, मैं तुम जा सकते हो। मेरा बेटा। फिरोजा मेहरमा कहाँ है? शहजादे महमद के साथ बागीचे में गई है मालिका। आप कहें तो बुला दूं उन्हें? नहीं, रहने दो, घूमने दो उसे। तुम भी चली जाती कुछ देर के लिए? मैं बाद में चली जाऊंगी मालिका। मलिका, मलिका एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। आका ने तबरेज से आपके लिए एक मकतूब भेजा है।
आप सब जाएं, मैं तखलिया चाहती हूँ। ऐ मेरे दिलो जान की मालिक, मेरी ख्वाहिश, मेरी खुशी की मालिक, ऐ मेरे पार आए दिन, मैं यहाँ सुलगते हुए दिन गुजार रहा हूँ, आसमान समंदर की तरह ठहरा ठहरा, लेकिन ये क्या कि ये पानी क्यों तुम्हें मेरे पास नहीं आने दे रहा? सुंबुल, सुंबुल आगा, कहाँ हो तुम? सुंबुल आगा! फरमाइए मलिका। ये मकतूब मेरे लिए नहीं है सुंबुल। कैसा मकतूब शहजादी? आका ने फिरोजा के नाम मोहब्बत भरा मकतूब लिखा है, मैंने वो हुरम को भिजवा दिया। कैसे? ऐसा क्यों किया आपने? उसे अज़ियत देना चाहती हूँ इस वजह से उसके दिल में खंजर की तरह बेवस्त हो जाए। ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। मैं जब भी आंखें बंद करती हूँ तो निगार का चेहरा नजर आता है। मैं उससे भूलने ही वाली थी कि वो उसे मेरे सामने ले आई। कुछ उसका सुकून भी तो गारत हो। वो ठीक है शहजादी, वो फिरोजा की हैसियत जान लेगी, उसकी हिफाजत कैसे करेंगे? जहां जहां उसका नाम लिखा हुआ था मैंने मिटा दिया। क्या आपने पढ़ा था? हमें धोखा दिया गया है, वो खातून अभी तक जिंदा है। ऐसा कैसे हो सकता है मलिका? नादिया के साथ जो कुछ भी हुआ आका को उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। उन्होंने इसी वजह से लिखा है शायद। नाम मिटा दिए गए हैं। नादिया होती अगर तो ऐसा क्यों करते बोलो? हाय मेरे अल्लाह, ये तो वाकई सोचने की बात है। उस खातून को जानबूझकर हमारे सामने लाया गया, खेल खेला गया है। कौन है ये खातून सुंबुल? मलिका अगर ऐसा ही है तो किस मकसद के लिए आपके पास ये मकतूब भेजा गया? कैसा मकसद? खजीना सुल्तान मुझे अजियत देना चाहती है। मलिका, मलिका रुकिए, आप कहाँ जा रही हैं? अल्लाह के वास्ते रुकिए मलिका। खजीना सुल्तान कहाँ है? अपने कमरे में है क्या? नहीं मलिका, शहजादे महमद के कमरे में गई हैं वो। है मेरे जानो दिल की मालिक, मेरी ख्वाहिश मेरी खुशी की मालिक, है मेरे पारे दिल, यहां सुलगते हुए दिन गुजार रहा हूं। आसमान समंदर की तरह ठहरा ठहरा है, लेकिन ये क्या कि ये पानी क्यों तुम्हें मेरे पास नहीं आने दे रहा? मेरे और तुम्हारे दरमियान क्यों हाइल हो रहा है? समंदर के साथ ये जमीन दरमियान में है। काश ये हवा मुझ तक तुम्हारी कोई खबर ले आए। मेरे लोहे दिल से तुम्हारे सिवा सब नाम मिट गए। तुम ही हो मेरा इश्क ताबनाक फिरोजा। ये हिजर आरजी है, हम बहुत जल्द मिलेंगे, वसल से हम आगोश होंगे। शहजादी, आखिर आ ही गई। मैं तुम्हारी ही मुंतजिर थी।
मुझे इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था। आका के नाम से आपने मकतूब लिखने शुरू कर दिए हैं। अगर तुमने पढ़ा है तो आका की मोहर भी देख ली होगी उस पर शायद। चाहे उसे कबूल करो चाहे ना करो, अब अपनी असलियत पहचान लो हुरम, क्योंकि हकीकत यही है। वो मोहब्बतनामा आका ने लिखा है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। जाहिर है कोई और औरत है अब उनके दिल में। नामुमकिन, ये मुमकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते, तुम ये समझ रही थी, लेकिन जाओ खुद को आईने में देखो जरा। बरसों पहले की तरह अब जवासाल खूबसूरत नहीं रही तो 5 बच्चों की माँ हो ये मत भूलो। मैं जानती हूँ कबूल करना मुश्किल है, जिंदगी तेजी से गुजर रही है, तुम्हारी उम्र ढल रही है। माहे दौरा ने जो कुछ झेला है वही सब कुछ अब तुम झेलोगी यकीनन। तुम्हारे जादूगर भी अब तुम्हारे काम नहीं आएंगे, उनमें भी इस मोहब्बत को खत्म करने की ताकत बिल्कुल नहीं। हरम में खूबसूरत लड़कियों को छुपा के फांसी देना इस मसले का हल नहीं है। ये औरत तुम्हें फना कर देगी हुरम। क्या कह रहे हो तुम आगा? कौन सी खातून मर नहीं गई क्या? ओहो, तुम्हारी अक्ल कहाँ है? क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो? हमारे साथ खेल खेला गया है गुलशा, नादिया वो लड़की बिल्कुल नहीं। कैसे हो सकता है? कसम से मेरा कोई कसूर नहीं है, तुम भी जानते हो। अब तो मेरे भी ऊपर से गुजर रही है गुलशा। तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते, तुम ये समझ रही थी, लेकिन जाओ खुद को आईने में देखो जरा। बरसों पहले की तरह अब जवासाल खूबसूरत नहीं रही तुम। पांच बच्चों की माँ हो ये मत भूलो। मैं जानती हूँ कबूल करना मुश्किल है, जिंदगी तेजी से गुजर रही है, तुम्हारी उम्र ढल रही है। आका से मिलना चाहता हूं, उन्हें मेरी आमद की खबर दे। माजरत चाहता हूं पाशा हजरत, आप अंदर नहीं जा सकते, आका मसरूफ हैं। कौन है उनके हमरा? रुस्तम आगा। पाशा मोहतरम, बगदाद के सफर पे जाने की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। कल सुबह रवानगी मुमकिन है।
आला हजरत, अगर कोई और होता तो अब तक इसका सर कलम हो चुका होता। आका इन्हें माफ ना कर दे। शाह मोहतरम, क्या जवाब है सुलेमान का? सुलह की पेशकश कतई तौर पर मुस्तरद कर दी गई है शाह। जंग करें या फिर शिकस्त तस्लीम करें, वो ये चाहते हैं। तुम्हारी वजह से मैंने अपने वक़ार को पांव तले रोन दिया, इसके बावजूद हमें क्या मिला? कुछ भी तो नहीं। सुलह करने के लिए आपने ताखीर कर दी शाह। वक्त पर मेरा मशवरा मान लेते तो ये सब ना हुआ होता। शाह, सुल्तान सुलेमान ने आपके लिए मकतूब और एक तोहफा भेजा है। कैसा तोहफा? ये मालूम नहीं, सिर्फ आपको पेश करने के लिए कहा था। तहमास बहादुर, मेरा फरमान जब तुम्हारे हाथ में आएगा तो समझ लेना कि तमाम अस्करी ताकत मेरे कब्जे में है। मेरे फरमान के ताबे इस सरजमीन की आवाम है। बादशाहों ने आकर मेरे दरवाजे पर अपने सर झुकाए, इस जहां के हाकिम को अपना हाकिम तस्लीम किया। फिर क्यों तुमने मेरे दरवाजे पर सर तस्लीम खम होने की दरख्वास्त नहीं की? तुम्हारी इसी कम अक्ली की वजह से मेरे लिए मशरिक के दियार में हुकूमत करने का सबब बना। मेरा लश्कर तब्रेज की जमीनों और अजम मुमलिकत पर काबिज है। तुरान और सायर सूबों पर अपनी मुमलिकत कायम करने का फैसला कर लिया है। अपनी सिपा से अगर तुम शर्मिंदा नहीं हो तो क्या तुम्हें अपनी खवातीन से भी शर्म नहीं आती? अगर मर्द हो तो सामने आओ। हक को टाल नहीं सकते, तकदीर में जो भी लिखा है वही होगा। तुम्हारे साथ सल्तनत तब्रेज के मैदान में सामना होगा। अगर मैदान में तुम जैसा शेर नहीं आया तो एक लोमड़ी की तरह शिकार करने वालों को मैं मर्द नहीं समझता। अगर तुम इस मैदान में नहीं आए, मेरी तरफ से भेजा हुआ औरतों का लिबास पहन लेना और उसके बाद शाह के नाम का ताज नहीं पहनना। अपने मर्द होने का किसी से भी जिक्र मत करना। तमाम कायनात तारीकी और खामोशी में डूबी है। अपनी तारीकी में एक रोशनी को छुपाए हुए ये तारीकी और खामोशी रोशनी और आवाज न होने की वजह से नहीं है। तमाम रोशनियां और आवाजें अपने अंदर जज्ब करना ही ताकत है। तारीकी असल में एक रोशनी है सुलेमान। रातों को नींदें उड़ा देने वाली आवाज असल में खामोशी है। पाशा मोहतरम, आका ने आपको बुलवाया है। इंसान हर किसी को अपनी तरह देखता है, उसके मुकाबिल कोई नहीं। सब लोग एक ही जैसे हैं। अगर प्यार करता है तो और ज्यादा मजबूत हो जाता है। ये दुनिया गोल है और सिर्फ एक है, अंदर से बाहर से अलग है। लेकिन हसद का रोग लगने के बाद दिल का हर टुकड़ा मुकाबिल आने वाले इंसान को अपने खिलाफ समझने लगता है। इतराफ में हुजूम लग जाता है। खुद को दूसरे लोगों से अलग, अपनी और दूसरों की दुनिया अंदर से अलग, बाहर से अलग होने लगती है। मेरे आका, कई दिनों से मुंतजिर था मैं आपसे बात कहने के लिए। आखिर आपने तलब फरमा ही लिया। मुझसे क्या कहना चाहते हो इब्राहिम? क्या समझाओगे तुम अपने सुल्तान कहलाने के मुतालिक, खजीना के साथ बेवफाई करने के मुतालिक?